Hello students, how are you? Let's have some fun with chemistry here. Today's topic is acid, base and salts. And this lecture series will help all the students of 10th, ICSE and CBSE, and of course it will help all the students of chemistry across boards and various classes. Now let us come to the point here. The chapter says acid, base and salts. So the first question that comes in our mind is why this chapter is there in the very first place. Why we have one single chapter for these three type of chemical compounds. So we see the three type of chemical compounds are here. One is we are talking about acids. Second is we are talking about base, and related to the base there is one term known as alkali. And then we have the master chemical compound, that is salts. Now first things first, alkali is a water soluble base is known as alkali. अगर कोई बेस पानी में डिज़ोल्व हो रहा है, वाटर सॉलेबल बेस, तो उसको एक नया नाम भी दिया गया है, that is alkali. This is the first point that we are going to talk here. Now coming back, why these three type of chemical compounds are taken in one chapter? This is because of the great work of one great scientist, that is Arrhenius. Arrhenius and Michael Faraday. These two great gentlemen laid the foundation of this chapter, and most of the concepts that we will study in this chapter were given or started by the great Arrhenius and to some extent by Michael Faraday. So these gentlemen have introduced a term in chemistry, that is electrolyte. What is an electrolyte? Electrolyte is any chemical compound which passes electric current. So we come back to the electrolyte. Electrolyte is any chemical compound, chemical substance, or we should say chemical compound which pass current, is known as an electrolyte. And how did they do this? They had taken a container here like this, and they were putting the chemical substances over here, and they were passing electric current using two rods. They were passing electric current using two rods, and one was connected to the minus one and the other one was connected to the plus one. Plus is known as the anode and the minus one is known as the cathode. So if this was passing a current, they were saying it is an electrolyte. Non-electrolyte are those compounds. Non-electrolytes are those compounds which do not pass any current. Compounds which do not pass current. So they said about electrolytes, and they have also told about the non-electrolytes. So here the first thing that comes to our mind is acid, alkali and salts are strong electrolytes. Some of them are weak electrolyte, but they are all electrolytes. So we need to see in this context that this chapter is there because acid is also an electrolyte, alkali is an electrolyte, and salts are also electrolytes. Now all these electrolytes were tested in aqueous solutions. Now this is where chemistry becomes very, very interesting. Water is a good solvent. The solvent they chose is water.
Now water is chosen as the solvent, and when you dissolve anything in water, there is actually some chemistry taking place. And what was happening here, you can dissolve two class of ionic compounds. One is ionic and the other is covalent. Covalent is also two types, that is polar covalent, and then we have non-polar covalent. Non-polar covalent, they do not dissolve in water and they do not pass current, so basically they are all non-electrolytes. Now polar covalent, when you dissolve in water, they show something, and ionic compounds, when you dissolve in water, they show also something. So the first term that I will like to introduce is ionic dissociation, and over here the word used was ionization, and these are non-electrolytes, they do not show ionization. Let us discuss these terms here. Ionic dissociation, let us discuss ionization, and let us see why they do not show the dissociation. So first of all, we will discuss the ionic compounds, and then we will discuss about the ionic dissociation. Ionic dissociation, or simply dissociation. Dissociation means separation of cations and anions. Let us take an example here. NaCl, it is an ionic compound. What it is made up of? It is made up of Na plus, and there is an electrostatic force of attraction. This is the electrostatic force of attraction here. So the ions are present. Ions are present here, and when you dissolve in water, that is, you make an aqueous solution, you see the dissociation, simply the dissociation. So what happens, we can say water ruptures the ionic bond. Very important point here. Water is able to rupture the ionic bond or break the ionic bond, or we can say the electrostatic force of attraction between the cation and anion becomes zero, and they are into free ions here. So this term is known as dissociation. Now let us see some polar covalent compounds. See over here, I will take the example of polar covalent compounds. Polar covalent compound, let us take HCl. HCl is a molecule, do not contain ions, but some plus charge is present here and some minus charge is present here. Delta means a small positive, and when this dissolves in aqueous solution, it forms H plus and Cl minus. So this term over here is known as ionization. मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो आयंस नहीं थे, यहाँ पर आयंस बने हैं, न्यू आयंस हैव बीन फॉर्म्ड हियर. तो ये आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए हैं. आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन, वैसे बड़ी क्लास में हम लोग सीनियर क्लासेस में आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन दोनों वर्ड को सिमिलर यूज से काम करते हैं. So let us talk about the first part of this chapter, that is the acids. तो एसिड्स का कुछ क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, पूरा से को डिटेल में समझते हैं. क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट जब ये पहली बार एक एसिड के बारे में बोलना शुरू किया तो इन्होंने कहा एसिड वो चीज़ें हैं जिनका टेस्ट ये है सार, SOUR. द टेस्ट इज sour. There is a sour taste. Acids are sour in taste.
एसिड्स आर सार एंड एसिड्स आर करोजिव इन एक्शन। करोजिव मतलब स्किन वगैरह पे लग जाएगा तो बर्न करेगा, उसको खराब कर देगा। एंड दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। ऐसा कुछ ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आर्हीनियस ने इसको चेंज किया है। आर्हीनियस ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस तो केमिस्ट्री के बड़े जोरदार आदमी थे। इन्होंने कहा एसिड्स डिसोशिएट, डिसॉल्व नहीं, डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशंस and form H plus ions as the only positive ions। मतलब उन्होंने कहा किसी भी एसिड को जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व के साथ साथ डिसोशिएट भी हो जाएगा। लेट अस सी सम डिसोसिएशन रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। जैसे एक एसिड होता है, बड़ा फेमस एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। जब आप इसे पानी में ऐसा डिसॉल्व करेंगे तो ये H प्लस आयन बनाएगा और ये बना लेगा सल्फेट आयन। तो यहाँ पर 2H प्लस बनाएगा, देखो ऐसे 2 लिखा है। देन लेट अस सी सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड इज H2SO3। ये जब डिसोशिएट होता है 2H प्लस बना ले रहा और सल्फाइट आयन ये बना रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स आज हम लोग देख डालें तो हमारा कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। दैट इज़ द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला इज HNO3। HNO3 जब ऐसा पानी में डिसोशिएट होता है डालने पर H+1 एंड नाइट्रेट -1। लेट अस टेक सम मोर एसिड्स लाइक विच आर वेरी फेमस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl डिसोशिएट्स इन वाटर टू गिव H+ एंड Cl-। ऐसा कुछ डिसोसिएशन है। और वो बात सही थी कि देखो यहाँ पर H+ आयन है, यहाँ पर H+ आयन है, यहाँ पर H+ आयन है और H+ आयन है। और आर्हीनियस ने ये बात बताई दुनिया को कि H+ आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर। और ये जो एसिडिक नेचर है इसके मीनिंग्स अब बहुत बदलते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी केमिस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है हमारे मीनिंग्स बदल रहे हैं। यहाँ पर एक स्टार लगा लो, इसके बारे में हम लोग की बहुत डिटेल में बात होने वाली है कि एसिडिक नेचर से मतलब वही नहीं है कि सार टेस्ट है और ये है। तो ये हमारे डिसोसिएशन हो गए, ये एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं। हाँ, एक बात और है, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है हाइड्रोनियम आयन। तो यहीं पर जान जाओ, हाइड्रोनियम आयन होता है H+ के साथ वाटर एक छोटा सा बॉन्ड बनाता है जिसे हम अब इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। दिस इज योर हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन के बारे में यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में H+ आयन ही लिखते हैं ताकि वो इतना लंबा चौड़ा उसमें ना बन पाए। तो अभी देखो कि आर्हीनियस के हिसाब से ये हो गए एसिड्स डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर्म H+ आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन, क्योंकि वो डिसोशिएट हो रहे हैं और ऐसे डिसोशिएशन हमने देखा। अभी देखो कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, तो यहाँ पर एसिड्स को पहले तरह से जो डिफाइन किया गया है, एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। पहला वाला जो मेथड है एसिड को क्लासिफाई करने के लिए, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स हैं जो 100% डिसोसिएशन शो करते हैं। अगर कोई एसिड है जो 100% डिसोशिएट कर गया, मतलब अगर हमने HCl डाला
और इसके 5 मॉलिक्यूल डाल दिए और ये 5 मॉलिक्यूल से यहाँ पर H+ बन गया और यहाँ पर Cl- बन गया, तो ये भी 5 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5, मतलब 100% कंप्लीट टूट गया। तो इसी टाइप के एसिड्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स शो 100% डिसोसिएशन एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ H+ ion is more. And then what are weak acid? Weak acid show partial dissociation. देखो पार्शियल डिसोसिएशन का ये मतलब है कि अगर तुमने पार्शियल डिसोसिएशन, जो वीक एसिड्स होते हैं इनका डिसोसिएशन होता है लेस देन 5%। बात को हमारी समझ लो, लेस देन 5% मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल डालोगे तो 3 या 4 ही टूटेंगे, बाकी वैसे ही पड़े रहेंगे। तो ये हैं पार्शियल डिसोसिएशन वाले एसिड्स। लेस देन 5% इसका डिसोसिएशन होता है। फिर यहाँ पर एक टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स में बहुत बड़ा कठिन सा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो मिनरल एसिड जो हमें करने हैं वो एक हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर 2 पे ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स में पहला ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पर ले लेते हैं एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। तो जनरली ये देखा गया है कि ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड होते हैं, और वीक एसिड का हमने एक तरीका तुम लोगों को बता रखा है अब, लेस देन 5% डिसोसिएशन। और अगर ये ना याद रहे कि कितना परसेंट है तो चलो ये कह दो पार्शियल डिसोसिएशन, मतलब बहुत कम टूटते हैं। पार्शियल मतलब थोड़ा सा, पार्शियल डिसोसिएशन। चलो अच्छा आ जाओ एसिड्स के बारे में। एक और क्लासिफिकेशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो ये यूज़ करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डाइल्यूट एसिड, और दूसरा हम कहते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड। अब ये दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन वाले वर्ड हैं। जैसे हम तुम्हारे घर गए, हमने कहा भाई चाय बना के लाओ और 1 कप हमारे लिए, 1 कप अपने लिए, हमारे वाले कप में 10 चम्मच चीनी डालना और अपने वाले में आधा चम्मच चीनी डालना। तो किस में ज़्यादा है चीनी, किस में ज़्यादा है? कंसेंट्रेटेड में। तो कंसेंट्रेटेड एसिड वो होता है जहाँ पर एसिड इज़ मोर, वाटर इज़ लेस। ये कंपैरिजन पे है। और यहाँ पर क्या है? एसिड इज़ लेस एंड वाटर इज़ मोर। और जब ये वाटर ज़्यादा होगा तो डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर याद रखना, डिसोसिएशन इज़ मोर, और जब वाटर लेस होगा तो डिसोसिएशन भी इज़ ऑल्सो लेस। पानी के डालने से ही डिसोसिएशन हो रहा है। अब एक और इन्होंने तरीका निकाला है कि डिसोसिएशन हो और हम चलो काउंट कर लें, तो वो है, एक वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड देखो, जैसे HCl है तो एक H+ निकला और एक, मतलब एक मॉलिक्यूल से एक H+ निकला, तो ये कैसा एसिड है? मोनोबेसिक। आई एम सॉरी, थोड़ा गलत स्पेलिंग हो गया। तो मोनोबेसिक है, मोनो बेसिक एसिड है, या कह सकते हैं बेसिसिटी क्या है इसकी? 1 है।
इसी तरह से देखो अगर CH3COOH डिसोशिएट होगा तो बनेगा H+ और CH3COO-1। ये सब नोट करते जाओ। इस वाले आयन का नाम होता है एसीटेट, तो यहाँ पर भी बेसिसिटी 1 है। इसी तरीके से देखो अगर H2SO4 डिसोशिएट होगा तो 2 H+ निकलेंगे और SO4 निकलेगा -2 हियर, तो ये 2 के वजह से ये हो गया डाई बेसिक। ऐसा मतलब नंबर ऑफ H+ आयन अगर हम देख लें एक मॉलिक्यूल के डिसोशिएट होने से, उसी से हमको पता लग जाता है। एक एसिड होता है अच्छा सा, इसका फॉर्मूला भी है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4। जब ये डिसोशिएट होता है तो 3 निकलता है इसमें से और फॉस्फेट आयन निकलता है, तो इस 3 के वजह से ये हो गया हमारा ट्राई बेसिक एसिड। ये वाली बातें हो गई। अब देखो ऊपर एक टर्म आया था जिसे हम कहते थे एसिडिक नेचर, तो उसको यहाँ पर विशेष चर्चा कर डालें कि एसिडिक नेचर से हम लोग क्या कह रहे थे। एसिडिक नेचर के लिए जल्दी से बताओ कौन सा आयन होना ज़रूरी है। एसिडिक नेचर के लिए द सॉल्यूशन मस्ट कंटेन H+ आयंस। तो सॉल्यूशंस में H+ आयन होने की चांस ज़्यादा होगा किस कंडीशन में? डाइल्यूट एसिड्स में। तो हम लोग लिख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स। ये वीडियो पॉज कर करके तुम लोगों को देखना पड़ेगा और फिर मज़े भी आने लगेंगे। देखो ज़रा सा एक रिएक्शन करते हैं जिंक प्लस डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट क्यों है? क्योंकि ज़्यादा पानी डाल दें, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये आ गया ZnCl2 और ये निकल गई इसमें से हाइड्रोजन गैस। चलो अच्छा देखो इसी रिएक्शन को, जिंक का रिएक्शन देखो डाइल्यूट H2SO4 से क्या बनेगा, समझ गए होगे। यहाँ बनने वाला है ZnSO4 और H2 गैस। जिंक के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन नहीं किया जाता है, इस वजह से एज HNO3 कन्वर्ट्स H2 टू H2O। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने एक जिंक वाला उठा लिया और तीनों के साथ इस रिएक्शन को करवा दिया। तो जिंक समझ गए होंगे। जिंक को क्यों सेलेक्ट किया है? एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है तो ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर रूल बना लेते हैं, एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड से हमें मिल रहा एक सॉल्ट और H2 गैस। इसी तरीके से देखो रिएक्शंस ऑफ एसिड्स हम लोग देख रहे थे। पहला रिएक्शन यही हो गया एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव मेटल जरा याद रखना, कोई भी मेटल नहीं, ओनली एक्टिव मेटल। चलो एक रिएक्शन करो फिर Na2CO3 प्लस डाइल्यूट HCl के साथ, और यही रिएक्शन करो Na2CO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और यही रिएक्शन करके देखो डाइल्यूट HNO3 के साथ। देखो जब भी प्रैक्टिस करो तो खूब कस के करो प्रैक्टिस, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ बनेगा NaCl, यहाँ बनेगा Na2SO4 और यहाँ बनने वाला है NaNO3। दूसरी तरफ सब केसेस में वाटर तो बनना ही बनना है, और यहाँ पर एक गैस निकल रही है CO2 और CO2। फटाफट इसको बैलेंस कर लें। यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर 2 लगा लें। अब शायद ये बैलेंस्ड हो गया है, और ये देखो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और यहाँ पर हमको ऐसा 2 लगाना पड़ेगा। तो ये देखो कि जैसे हमारे पास नंबर ऑफ H और ये सब कैलकुलेट करके हमारे पास एक फॉर्मूला और बन गया है।
कि कार्बोनेट, ये देखो यहाँ पर ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट्स प्लस डाइल्यूट एसिड से हमें मिलता है सॉल्ट प्लस CO2 गैस। लेट अस सी द बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट में अब हम केवल HCl के साथ ही रिएक्शन करके देखेंगे, NaHCO3 प्लस डाइल्यूट HCl। चलो अच्छा एक और कर लो, NaHCO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पर बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ पर भी बनने वाला है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंसिंग में थोड़ी सी आपको माथापच्ची करनी पड़ सकती है। ये देखो ऑलरेडी बैलेंस है, एक गलत भी कर दिया है। अरे जब सल्फेट है तो ये होगा ना Na2SO4। अब ये बैलेंस भी शायद हो गया हो, नहीं यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो ऐसा हमारे पास हमने देखा कि बाइकार्बोनेट्स ये हैं बाइकार्बोनेट्स जिसमें HCO3 होता है। बाइकार्बोनेट से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस CO2 गैस। चलो अच्छा देखते हैं, जिंक सल्फाइड के साथ अगर हम HCl का रिएक्शन करते हैं और HCl है डाइल्यूट, ZnS और H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, ये भी है डाइल्यूट। तो देखते जाओ क्या बनने वाला है, ZnCl2 प्लस H2S गैस। यहाँ पर क्या बनने वाला है, ZnSO4 प्लस H2S गैस। तो सल्फाइड्स के साथ हमने देखा, सल्फाइड्स ये देखो यहाँ पर ये मेटेलिक सल्फाइड्स प्लस एसिड से हमें गैस कौन सी मिल रही है, H2S गैस। तो ये हमने देखा कि मेटल्स के साथ नॉन मेटल जितने भी रिएक्शंस देखे सब डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई ना कोई गैस ही निकल रहा है। आ जाओ फटाफट फिर देख लें जो गैसेस हमने निकाली हैं इसमें से रिएक्शन से, उसमें क्या क्या बातें विशेष हो रही हैं। तो जल्दी से देख लो यहीं पर। चलो अच्छा इसको यहाँ पर नहीं देखेंगे, इसको दूसरे पार्ट में देखेंगे कहीं पर। यहाँ पर हमको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा एसिड्स का एक डिस्कशन। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहीं पर ख़त्म होता है। एंड देन वी शुड टॉक अबाउट बेसेस हियर। बेसेस का जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में या क्लासिकल डेफिनेशन में हम ये कह रहे हैं ये बिटर इन टेस्ट होते हैं। और ये सॉफ्ट सोपी इन टच होते हैं, चिकना सा ऐसे लगेगा इसमें। और ये क्या करते हैं, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। ये रेड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आर्हीनियस ने क्या बोला है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिफरेंट है। आर्हीनियस ने सब बेसेस को पानी में मिलाना शुरू किया और इन्होंने कह दिया वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज एल्कली। और इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, एल्कली सॉल्यूशंस कंटेन OH माइनस आयंस। और ये OH माइनस आयंस के 3 या 4 नाम बड़े फेमस हैं। OH माइनस आयन को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, नॉर्मल केमिस्ट्री में ये बड़ा नाम फेमस है। लेकिन आर्हीनियस ने जो वर्ड यूज़ किया है उसका नाम किया है हाइड्रोक्सिल, ऐसा बोला है। OH माइनस आयन को ही बोला है उन्होंने हाइड्रोक्सिल।
और फिर ये वही तरीका, स्ट्रॉन्ग बेस वही होते हैं जो 100% आयोनाइजेशन शो कर देते हैं, 100% आयोनाइजेशन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड द फॉर्मूला इज NaOH, और ये ऐसा डिसोशिएट होते हैं Na+1 में और ऐसा डिसोशिएट होते हैं OH- में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैं। KOH, ये डिसोशिएट होते हैं K+1 में और OH- में। अब आ जाओ जल्दी से देखा जाए कि वीक बेसेस हमें कौन से सीखने चाहिए। हाँ ठीक है, वीक एल्कली कहते हैं यार, एल्कली को बोलो, इसको बेस नहीं बोलो। वीक एल्कली होता है लेस देन 5% डिसोसिएशन, बहुत कम डिसोसिएशन है। अगर इसको नहीं स्पेसिफाई करना चाहते हैं सो लेट अस कॉल देम टू दैट दे शो पार्शियल डिसोसिएशन। पार्शियल डिसोसिएशन मतलब थोड़ा सा टूटेंगे, बाकी तो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। तो यार ये ले लो NH4OH, जब इसको पानी में डालेंगे तो ऐसा NH4+ बनाएगा और OH- बनाएगा, लेकिन 5%, मतलब यहाँ 100 मॉलिक्यूल डालोगे तो 5 टूट जाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एल्कली। तो बेस के बारे में फिर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने एक बात बताई है, बेस आर बिटर, वो पुराने कॉन्सेप्ट से चलेगा। तो लेट अस सी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसेस और एल्कली। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसेस और एल्कली। तो बेसेस जो हम लोग याद करते हैं, जो हमें कुछ बेसेस याद कर लें, तो बेसेस होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, और वैसे कुछ ऐसा मेटल हाइड्रोक्साइड भी, ये सब क्या है, सॉलिड कंडीशन में बेस होते हैं, और यही है। तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो चलो इनके कुछ रिएक्शंस हम लोग देख लें और फिर कुछ एल्कलीज के रिएक्शन देख लेंगे। और एल्कली में यही हैं, वाटर सॉलेबल होंगे, वाटर सॉलेबल बेसिस, बड़ा थोड़ा सा एक है। तो इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बेस का मेरी समझ में है वो ये है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हमने लिया HCl और यहाँ से लिया NaOH, देख ही रहे हो, यहाँ से निकलेगा H+, यहाँ से निकलेगा OH-, ये बन गया वाटर, और ये हमारा आ गया NaCl। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेसेस का, ये सबसे अच्छा सा रिएक्शन है। चलो यहीं पर कुछ पुरानी बातें कर लें, जैसे कि हमें ऑक्साइड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं, व्हाट आर ऑक्साइड्स? ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। इसमें एक एलिमेंट है जो कंबाइन कर रहा ऑक्सीजन के साथ, एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा। तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है मेटेलिक ऑक्साइड। अरे मेटेलिक ऑक्साइड जैसे Na का आया +1 के साथ और ये आया -2, तो ये बन गया हमारा सोडियम ऑक्साइड। और दूसरा एग्जांपल ले लो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जैसे हमारे पास होते हैं SO2, SO3, सल्फ़र ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ऐसा ये सारा। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है। कुछ ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक मीन्स दे शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। जैसे इसमें Al2O3 है, ऐसा जिंक ऑक्साइड है,
थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड भी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मेरे को डाउट्स में लिख सकते हो, यहाँ पर एम्फोटेरिक वाली बात हम नहीं करने वाले हैं। अब आ जाओ कि ये जो सॉल्ट्स हैं ये क्या चीज़ होती है। तो देखो यहाँ पर जो डेफिनीशन है इनकी, सॉल्ट्स शुड कंटेन, जब इनको पानी में डिज़ोल्व किया जाए तो एक कैटायन बनाना चाहिए कम से कम और एक एनायन बनाना चाहिए। और यहाँ पर हम कह सकते हैं अदर देन H प्लस एंड OH माइनस। और यहाँ पर कैटायंस के बारे में हमको दो बातें और कर लेनी चाहिए। कैटायंस मोस्टली मेटल्स बनाते हैं और एनायंस जो होते हैं दे आर मोस्टली नॉन मेटेलिक। तो इस वाले लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अगर इस सीरीज़ में आगे कुछ बात हुई तो इसी के बाद पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा। इतना बेटा पढ़ो। और देखो मेरा सजेशन ये है कि वीडियो को पूरा देखना है और बीच बीच में इसको पॉज करके, केमिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि नोट्स बनाते चलें। केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स, you have to write, you have to learn, you have to rewrite, then it will give you a mountain of marks. With this, this is Himanshu Bhatt saying, may God bless you.